سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں آج یوم تقدیس قرآن منایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی قوم کو نماز جمعہ کے بعد احتجاج کی کال، شہر شہر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ پاکستان کی سویڈن واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، قرآن پاک کی بے حرمتی کی بھرپور قوت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں۔ سویڈن واقعے پر پوری قوم یک زبان ہے اور خبیث شخص کو نشان عبرت بنایا جائے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، سویڈن واقعے کی پوری قوت سے مذمت کریں گے، مؤثر انداز سے قرارداد منظور کی جائے۔ اسلاموفوبیا اور اسلام کے خلاف آگ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ایک تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں عیسائی دنیا میں اور اسلامی دنیا میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس خبیث شخص کی خباثت کو عبرت کی مثال بنانا چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم نے مسلمانوں کو گلے سے لگایا اور انہیں پورا تحفظ دیا۔ جسنڈا آرڈن کے اقدامات کو مسلمان دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ UN سیکرٹری جنرل اس معاملے پر اقوام متحدہ کا فوری اجلاس بلائیں۔ اصل بات یہ ہے، اگر ان کو بعد میں اس کا خیال آ گیا اور اٹس اے سیکنڈ تھاٹ تو چلو اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کا واقعہ انہوں نے کیوں ہونے دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوالیہ نشان ہے جس کے لیے سویڈن کی حکومت کو ہر صورت اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی اور جواب دینا ہوگا۔ وزیر اعظم کا سویڈن واقعے پر مزید کہنا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو دنیا بھر کے فورمز میں سفارشات پہنچائے۔ سویڈن واقعہ مسلمان اور کرسچن کمیونٹی کو لڑانے کی سازش ہے۔ پوری دنیا کو بتایا جائے کہ اسے کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر گہرا دکھ ہوا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا ٹویٹ، لکھا اس عمل سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو شدید دکھ پہنچا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ تمام عقائد کا احترام کیا جائے اور آزادی اظہار کے نام پر تعصب کی مذمت کی جائے۔ ادھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا، ایوان قرآن پاک کی بے حرمتی کے عمل کی شدید مذمت کرتا ہے۔ سویڈش حکام مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ مستقبل میں ایسی کوئی حرکت نہ ہو۔ بین الاقوامی برادری بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مناسب اقدامات کرے تاکہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا کوئی بھی عمل مستقبل میں وقوع پذیر نہ ہو۔ آپ کو آگاہ کریں کہ نواز شریف کو جھوٹے کیس سے بری کر دیا گیا ہے۔ چور چور کہنے والوں کو آج منہ کی کھانا پڑی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نیب نیازی جٹکوڈ نے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا۔ شہزاد اکبر کا کام مخالفین کی پگڑیاں اچھالنا تھا، میڈیا پر پابندی لگانا تھا۔ آج وہ خود پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ عدالتی فیصلہ آیا ہے، اس میں سابق وزیر اعظم نواز کو پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا تحریری حکم جاری ہوا ہے۔ یہ فیصلہ کہتا ہے کہ جب ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا تو کسی قسم کا کوئی قانونی تقاضا اور ضوابط اور کسی قسم کا کوئی قانون فالو نہیں کیا گیا۔ شہزاد اکبر صاحب جو تھے، ان کا کام کیا تھا؟ ایسٹ ریکوری یونٹ کا کام تھا، ایک تو ایسٹ میکنگ فار عمران خان اور سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا، جھوٹے کیسز بنانا، ان کی پگڑی اچھالنا، ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا، ان کی تضحیک کرنا، ان کو ہراس کرنا، میڈیا کی زبان بندی کرنا، میڈیا پہ کیسز بنانا، میڈیا کو جیلوں میں ڈالنا، یہ ان کا کام تھا، جو آج غائب ہے۔ آج وہ اپنی شکل نہیں دکھا سکتے اسکرین کے اوپر۔ لاہور کی احتساب عدالت نے نواز شریف کی پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تحریری فیصلے میں عدالت نے نیب اور ریونیو بورڈ کو نواز شریف اور دیگر جائیدادوں کو غیر منجمد کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیلات سلیمان آوان کی اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت کے تحریری فیصلے کے مطابق نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں تھی۔
रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अदालत 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है। अदालती फैसले में मजीद लिखा गया कि साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। अदालती मुआवन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को भी वही रिलीफ मिलना चाहिए था जो दीगर मुल्जिमान को दिया गया। मरकजी मुल्जिमान के साथ इश्तिहारी भी इसी सजा या रिलीफ का मुस्तहिक होता है। अदालत ने तहरीरी फैसले की कॉपी चेयरमैन नैब समेत दीगर को इरसाल करने की हिदायत कर दी। तहरीरी फैसले में ये भी लिखा गया कि अदालती मुआवन के मुताबिक नवाज शरीफ की जायदादों के शेयर होल्डर्स ने जायदादें मुंजमद करने के खिलाफ एतराज़ात दायर किए थे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एहतसाब रेफरेंस में मियाँ नवाज शरीफ की बरियत पर इज़हार तशक्कुर, कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मियाँ नवाज शरीफ को इंसाफ मिला। एहतसाब अदालत का फैसला गवाही दे रहा है कि नवाज शरीफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाने के लिए झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। अदालत ने तस्लीम किया कि नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट और हुकूमत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए। साबित हो गया कि नवाज शरीफ को नैब न्याजी गठजोड़ के ज़रिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा कि PTI के सीनियर वकील और सहाफ़ी ने इंकशाफात किए कि नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स में दानिस्ता तौर पर फंसाया गया। पनामा पेपर्स का मकसद उन्हें हुकूमत से निकाल कर सियासत पर पाबंदी लगाना था। इस बात का हमें रोज़े अव्वल से पता था। ये इंकशाफात इसलिए भी अहम है कि सच थोड़ा थोड़ा करके सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि इस सारे अमल में पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुँचा, जमहूरी इर्तिकाब में रुकावट आई और माशियत में शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका पाकिस्तान का बड़ा तिजारती शराकतदार है। हम अमेरिका के साथ ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में मज़ीद ताउन मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका सफारतखाने में अमेरिका के 247वें कौमी दिन की तकरीर से खिताब, कहा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के ख्वाह हैं। Information technology, of course, very partner in fighting the war against terrorism. In the process, Pakistan lost 80,000 people. America has been a great supporter and a great partner. We look forward to interacting with the United States in the field of agriculture, information technology. Of course, Silicon Valley, I've been there many years ago. We have great talent in Pakistan. We have a youth bulge. It's a challenge and this can be converted into an opportunity with our mutual cooperation and support. अब बात करते हैं जिना हाउस हमला केस की। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हमाद अजहर, हसन न्याजी, मियां असलम इकबाल और फरूख हबीब के वारंट जारी किए हैं। इनके अलावा पुलिस को अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज़ शेख, आज़म सवाती, हलीमा खान, उस्मा खान, अंदलीब अब्बास और करामत खोखर के भी वारंट गिरफ्तारी मिल गए हैं। अदालत ने जिना हाउस हमला केस में मजमूई तौर पर 22 मुल्ज़िमों के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत हुई और अदालत ने चेयरमैन PTI को जुमा के रोज़ ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन PTI की मंगल के रोज हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। चेयरमैन PTI के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानूनी मयाद गुजरने के बाद शिकायत का इंदराज नहीं हो सकता। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपील का फैसला होने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की भी इस्तदा की है। सेशन जज ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिनों में केस का फैसला करने की हिदायत की है। 7 या 8 जुलाई की तारीख दे रहा हूँ, 10 जुलाई को फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मुखालिफत करते हुए कहा कि जहाँ 7 माह पहले थे, आज वहीं खड़े हैं। अदालत ने समाअत जुम्मे तक मुलतवी करते हुए ख्वाजा हारिस को दलाइल देने की हिदायत कर दी। करते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, जिसके रहनुमा ओन चौधरी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दिफा को फरीक बनाया गया है। ओन चौधरी ने चेयरमैन PTI की नफरत अंगेज तकरीर को बुनियाद बनाते हुए दरखास्त दायर की है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ओन चौधरी ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अदलिया मुखालिफ और नफरत अंगेज तकारीर की, जो कि न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक बल्कि आईन पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है।
استحकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ने दरखास्त में कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इदारों के खिलाफ तकारीर भी आइन के मुनाफी हैं। PTI रहनुमाओं ने जलाओ घिराव के अहकामात देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ का बतौर जमात तहलील होना नागुज़ीर है। ऑन चौधरी ने दरखास्त में चेयरमैन PTI, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दिफा को फरीक बनाया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में चेयरमैन PTI के फौज के खिलाफ धमकी आमेज तकारीर का भी हिस्सा बनाया गया है। खबर आपको दें कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के कायदे ऐवान का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है और रिटर्निंग ऑफिसर गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक वज़ीर आला का इंतखाब 13 जुलाई को होगा। 12 जुलाई को 2 बजे कागजात नामजदगी जमा होंगे, जबकि दोपहर 4 बजे तक कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। 13 जुलाई सुबह 10 बजे कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब 13 जुलाई को दोपहर 12 बजे होगा। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर ख़जाना गिलगित बल्तिस्तान जावेद मनवा ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जावेद मनवा कहते हैं कि नौमी वाक़यात और दीगर रियासत मुखालिफ अमाल की मजम्मत करता हूँ। सब सियासी जमातों को आपस में बैठ कर मुल्की मफाद के लिए सोचना होगा। हमेशा चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आला GB के जारहाना फैसलों के खिलाफ था। अब बात करते हैं बारिश से होने वाले नुकसान की। तो पंजाब में बारिशों से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17 अमवात हुई हैं। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी है। लाहौर में 4, गुजरावाला में 6 और चकवाल में बारिशों के बायस हादसात में 3 अमवात हुई हैं। इसी तरह शेखुपुरा में 3, झंग और फैसलाबाद में 1 हलाकत हुई है। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में मजमूई तौर पर 49 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। उधर लाहौर के जनरल अस्पताल में निकासी आब का निज़ाम बेहतर न किया जा सका। अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर बारिश का पानी जमा रहा। मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ोहेब काज़मी। हालिया बारिशों से लाहौर की शाहराहों के साथ साथ जनरल अस्पताल भी पानी में डूब गया। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। इमरजेंसी वार्ड के बाहर पानी की बहुत बड़ी मिकदार जमा होने के बायस वाटर पंप भी कम पड़ गए। जनरल अस्पताल के प्रिंसिपल का कहना है कि अस्पताल की निस्बत मेन रोड का लेवल ऊंचा है, जिसके बायस फिरोजपुर रोड का पानी भी अस्पताल में तेजी से दाखिल हो रहा है। हॉस्पिटल का लेवल नीचे है, रोड बनी है तो थोड़ी ऊपर चलेगी है, वो पानी हम उसको पंप आउट कर रहे हैं, वो बार बार अंदर आ रहा है। महकमा मौसमियात की पेशगी इत्तला के बावजूद निकासियाब का निज़ाम बेहतर नहीं बनाया जा सका, जिसके बायस अहम शाहराहें और सरकारी इमलाक नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। खबर यह है कि नो हेलमेट नो पेट्रोल। लाहौर के शहरी हो जाएं होशियार। अब पेट्रोल पंप पर हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। DC लाहौर राफे हैदर कहती हैं कि कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाबंदी आयद की गई है। फैसलाबाद में भी हेलमेट के बगैर पेट्रोल की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। लाहौर में अब हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा। मकामी इंतज़ामिया के इस इक़दाम पर लाहौरियों ने मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया है। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये एक अच्छा इक़दाम है जिसमें हुकूमत को चाहिए कि इधर लिखवाई भी चाहिए और इनको भी अवेयरनेस दी जाए, कि लोगों को भी अवेयरनेस दी जाए कि हेलमेट पहन के वो पेट्रोल डलवाएं। सेफ्टी मस्ट है इंसान की। ये सेफ्टी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ये करनी चाहिए। ये मेयर्स जो है ना, ये हमें अपनाने चाहिए। जी बिल्कुल, ज़रूर हेलमेट तो ज़रूर पहनना चाहिए। इवन बहुत अच्छा इक़दाम है। और दूसरा बहुत अच्छा इन्होंने ये फ़ैसला लिया है क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट जो है मोस्टली इसी वजह से ही होते हैं बाइक के। इवन कि मैं तो कह रहा था जो पीछे वाला बंदा है उसके लिए भी हेलमेट जो है वो कंपल्सरी किया जाए। ऑर्डर हो जाते हैं मगर अमल दरामद इंतज़ामिया नहीं करती है। इनको चाहिए कि इंतज़ामिया को इस पर अमल दरामद करवाएं, पेट्रोल ना मिले, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंसानी जान कीमती है। हेलमेट ना हो तो आदमी पेट्रोल ज़रूरत होती है। एक चीज़ होती है किसी ने जनरेटर में डालना होता है, वो क्या करेगा? वो हेलमेट पहन के आए एक बार पेट्रोल लेने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PSC ने नादरा की जानिब से शहरियों का डेटा लीक होने का नोटिस ले लिया है। वज़ारत दाखिला को तहकीकात की हिदायत कर दी गई हैं।
PTA को शहरियों का लीक होने वाला डेटा फौरी ब्लॉक करने की हिदायत भी जारी की गई। नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हज इंतज़ामात के हवाले से हाजियों की शिकायत का जायज़ा लेने के लिए वफाकी सेक्रेटरी और मजहबी उमूर को तलब किया गया। सेक्रेटरी मजहबी उमूर की अदम शिरकत पर PAC ने शदीद इज़हार बरहमी किया। PAC ने नादरा की जानिब से शहरियों का रजिस्ट्रेशन डेटा लीक होने का मामले का भी नोटिस ले लिया। कमेटी ने वजारत दाखिला को डेटा लीक की मुश्तरका तहकीकात की हिदायत कर दी है। आम खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के लिए अमरीकी वीज़े के हुसूल में हुकूमती मुआवनत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि डॉक्टर आफिया के अहल खाना के कर्ब का बखूबी इदराक है और उनके गम में बराबर शरीक हैं। वज़ारत ख़ारजा डॉक्टर फौजिया को डॉक्टर आफिया से आइंदा मुलाकात के लिए वीज़े के हुसूल में मुकम्मल मुआवनत करेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए एक आला सतह का वज़ारती कमेटी भी कायम की जाएगी। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में पानी का मसला जल्द हो जाएगा। मुमकिन बारिश के हवाले से मनसूबा बंदी कर रहे हैं। कोशिश है कि वाटर बोर्ड को गैर सियासी तौर पर चला सकें। के पानी के निज़ाम को बेहतर बनाना है, सप्लाई के निज़ाम इस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और सप्लाई को कैसे यकीनी बना सकते हैं। जहाँ जहाँ पानी ज़ाया हो रहा है, पानी चोरी हो रहा है, उसकी रोकथाम कैसी की जा सकती है और सेवरेज के निज़ाम को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह टारगेट लेकर चलेंगे। नाज़रीन, कराची में मानसून का बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है और बारिशों से कबल इंतज़ामिया ने शहर भर के छोटे बड़े नालों की सफाई भी शुरू कर दी है। नालों की सफाई के दौरान कराची में बरतानवी दौरे हुकूमत का एक नाला भी दरियाफ्त किया गया है, जिसकी मुरम्मत का काम भी जारी है। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। कराची में जुम्मा से बारिश की पेशगोई की गई, जिसके बाद बल्दियाती इदारों को बरसाती नालों की सफाई का ख्याल आ गया। आया चुंदरीगर रोड पर बरतानवी दौर के बरसाती नाले की दरियाफ्त के बाद उसकी सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि जिस तरह लाहौर में बारिश हुई है, अगर इतनी बारिश कराची में भी हो जाए तो फिर पानी की निकासी घंटों में नहीं बल्कि दिनों में होगी। लाहौर में बारिश हुई है, 235 मिलीमीटर बारिश हुई है। कराची के अंदर भी तकरीबन इतनी ही बारिश होगी और उससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। बारिश का छींटा पड़ता है, उससे पहले ये दिखाते हैं कि सूरत हाल है, हम जो है बड़ी वर्किंग हो रही है। आई डोंट थिंक सो कि कुछ होगा। कराची का यही हाल रहेगा। गुज़श्ता साल कराची में तेज बारिश के बाद पूरा शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा था, जिसकी वजह पानी की निकासी का माकूल निजाम मौजूद न होना था। कराची में हर साल बारिश के चंद घंटे कबल बरसाती नालों की सफाई का काम शुरू तो जरूर किया जाता है, लेकिन बेहतर मंसूबा बंदी न होने के बायस बारिश के बाद हफ्तों तक पानी सड़कों और गलियों में मौजूद रहता है। कैमरामैन मोहियुद्दीन के साथ वक्कास खान, PNN कराची। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में दूसरे हफ्ते भी इजाफा हुआ है और स्टेट बैंक के मुताबिक 30 जून को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान सरकारी ज़खायर में 39 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 28 करोड़ 28 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। मजमूई ज़खायर की मालियत 9 अरब 74 करोड़ 55 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई है। खेल के मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। ज़का अशरफ का कहना है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप समेत बहुत से मामलात में बेहतरी की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी महाज पर मिलकर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करना है। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। नामजद चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ जब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पहुंचे तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मुनक्किदा पहले इजलास में बोर्ड के मुख्तलिफ शोबाजात के हेड्स ने ब्रीफिंग दी। ज़का अशरफ का कहना था कि स्टेडियम्स की तामीर नौ, खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम जारी है। नजम सेठी को एजाज बट की तरह बाइज्जत तरीके से अलविदा करना चाहते थे। बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में पाकिस्तान को जायज़ हक दिलवाएंगे।
ज़का अशरफ का कहना था कि रेंजर्स और एसोसिएशन इलेक्शन में धांधली का अजाला किया जाएगा। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ऑडिट के लिए जो चीजें मांग रही हैं उनको फराहम की जाएंगी। मीटिंग में मैनेजमेंट कमेटी ने ज़का अशरफ, सलमान नसीर और फैसल हुसैन की ICC इजलास में शिरकत के फैसले की तौसीक भी कर दी। और इसके साथ ही PNN के न्यूज़ स्टूडियो से खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। कुछ देर के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।